Hello to all the students of MCOM second year. I am Professor Sonia Digwa. Today we have take a lecture on the subject of specialized auditing for A group student. Okay, so last lecture we have started our second chapter will be audit of banks. Audit of banks. We discuss the in contains there are 3 points, main points concept of in consents. In content we have mentioned 3 point upper 3 points we have discussed is like introduction of bank audit, what is meant by bank audit in a way of introduction meaning, and approaches of bank audit we have discussed in detail way. So we have discussed there are 5 points of approaches. Okay, and also give you explanation. I have give you the explanation of that point will be in a detailed way. In last lecture we have discussed these 5 points in a detail way. Now we move forward to our next session, or like in next slide we have discussed whether the principle of bank audit will be governed under which year or under which section. Okay, so in this slide the main relating concept that whether we have making and bank audit the principle which have enacted by the government. Okay, rules and regulations जो principle government ने रूल्स एंड रेगुलेशंस फोकस किए हैं, फॉलोअप किए हैं, तो उनके अंतर्गत ही बैंक ऑडिट हम करेंगे. तो बैंक ऑडिट यहाँ पे हमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू विच ओके व्हाट टाइप ऑफ बैंक आर हैज़ बीन publish or in which year they have main governing as in bank audit. तो इन बैंकों को गवर्नमेंट ऑडिट कब मिला था फोकस. ओके ओके, सो फर्स्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विल बी लॉन्च इन 1949. Okay, 1949 we have main focus on develop the banking regulation act first. ओके, सो इसके अंतर्गत हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत भी अपने बैंकिंग ऑडिट को गवर्न कर सकते हैं. ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कब था? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन प्रीवियस ये विल बी 1955. कंपनीज एक्ट. ओके, the companies act will be changed now. Okay, as per you know that all of you this is a previous year 1956, the long period that from today we have changed that companies act in now. So in this slide the companies act will be changed only. Okay, they will be changed according to 2013 companies act. The state bank of subsidiary bank will be 1959. Banking acquisition and taking will be 1970. Regional Rural Banks Act 1976. Banking Companies Acquisition and Transfer Undertaking Act 1970. Information Technology Act 2000. And related to payment settlement last. ओके, सो इनका फोकस क्या है, कब हुआ? 2017 के अंडरगढ़ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं, तो ये प्रिंसिपल इसके जब हम बैंक ऑडिट करते हैं तो बैंक ऑडिट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करने हैं बैंकिंग स्टेटमेंट्स को, तो इन एक्ट्स के अंतर्गत वो लोग अपने स्टेटमेंट्स को मेंटेन प्रॉपरली करेंगे. ओके, सो इन दिस स्लाइड वी हैव डिस्कस वेदर द एक्ट हैज़ बीन लॉन्च ऑन विच ईयर. ओके, in this session we have discussed the stages and steps of bank audit, what kind of steps which have been taken, whether we have maintaining or preparing and bank audit. ओके, तो हमें क्या क्या जब हम बैंक ऑडिट करते हैं तो उसके क्या क्या हमारे स्टेज है कि जिसके अंतर्गत हमें बैंक ऑडिट हम करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्या है? प्रिलिमिनरी वर्क. तो हमें प्रिलिमिनरी वर्क में क्या क्या फोकस करना है, यहाँ सिर्फ इन दिस स्लाइड आई हैव ओनली मेंशन यू ओनली द पॉइंट्स ऑफ दैट. ओके, सो in next slide we have also discussed the detailed explanation of that stages. Okay, stages means we call up steps. Okay, stages को हम क्या बोलेंगे? steps, जो यानी कि
जब हम बैंकिंग ऑडिट करते हैं तो यह हमें कौन कौन से स्टेप्स को फोकस करना है ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी वर्क, सेकंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ओके, थर्ड विल बी प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, फोर्थ प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पहले क्या काम रहेगा उनको, प्रिलिमिनरी वर्क, क्या क्या वर्क बैंकिंग में रहता है उन्हें ये सबसे फर्स्ट है, इन्हें वर्क डिसाइड करना रहेगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे वर्क करेंगे और ऑडिटर को उनको प्रॉपर तरीके से समझना होगा। ओके, सो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकि वो उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट अपनी बना सके। ओके, सो फिर उसके बाद वो क्या देखेगा, प्रिलिमिनरी वर्क के अंतर्गत प्लानिंग आएगी ताकि ऑडिटर को सारा वर्क प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, पहले रिव्यू करना पड़ेगा कि फिर उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, रिस्क, तो इन सब की उसको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी विथ अ वेरी एज एन ऑडिट एविडेंस, ताकि वो जो ऑडिट रिपोर्ट कर रहा है उसकी वो प्रिलिमिनरी वर्क के अंदर प्लानिंग करेगा, उसके सारे वर्क काम करेंगे। फिर इसको इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत वो सारे कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो फोकस कर रहे हैं जब वो ऑडिट प्रोसेस कर ऑडिट वर्क ऑफ बैंक की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो उनको कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन को कौन कौन से सिस्टम लगेंगे और वो वर्क कैसे करेंगे और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो इसका इवैल्यूएशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या फ्लेक्सिबल है नहीं है, तो इसको वी हैव रीड दैट कॉन्सेप्ट इन अ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल। तो सेकेंड उसका पहले क्या रहेगा, ऑडिटर को प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन सेकेंड स्टेज दे हैव मेन, फर्स्ट स्टेज दे हैव मेन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, they have supposed to maintaining all kinds of previous year report to check and review of financial statement of previous year branches, okay, their branch प्रीवियस ईयर। और फिर उनको अंतर्गत वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब वो ऑडिटिंग प्रोसेस करेंगे तो वो देखना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या रहेगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग प्रोसेस तक उसके ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत के स्टार्टिंग में क्या काम करना है, एट द एंडिंग पूरी प्रोसेस मेंशन रहती है। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर हैव बीन फोकस। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या आएंगे, सारे के सारे फर्स्ट टू लास्ट स्टेज तक ऑडिटिंग की मेंशन रहेंगे। एंड लास्ट प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में हम क्या फोकस देंगे कि हाँ हमने ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, हमें ये सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद हमारी ऑडिट रिपोर्ट वी हैव प्रिपेयर्ड एंड सबमिट टू द अथॉरिटीज, हेड ऑफिस और एनी banking whole departments. Okay, so this is the stages whether we have maintaining or preparing and banking audit. Okay, so these are the 4 stages which we have prepare focus whether we have maintaining and banking audit. Okay, नेक्स्ट स्लाइड इन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन हम देंगे। तो इस पॉइंट्स का मैंने इवैल्यूएशन, इफ आपको प्रीवियस स्लाइड में इनका यानी कि पॉइंट्स ना दिखने में प्रॉब्लम हुई है बिकॉज ऑफ ग्राफ, सो यू हैव मेनली फोकस ऑन दिस स्लाइड ऑल्सो। प्रिलिमिनरी वर्क, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम फॉर सब्सटीट्यूट एंड टेस्टिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, सो वहाँ पे सिर्फ ओनली पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स हैं आप लोगों को। और लास्ट पॉइंट्स है, स्टेज है प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बी आउटलाइन इन द लेटर ऑफ फॉर कंफर्मेशन। ओके, सो प्रिलिमिनरी वर्क, इन प्रिलिमिनरी वर्क सो ऑडिटर का यानी कि क्या है, अभी जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक्सप्लेन किया, द ऑडिटर, फर्स्ट आई विल रीड दैट एक्सप्लेनेशन दैट आई विल गिव यू टू यू। The auditor should acquire knowledge of the regulatory environment in which the bank operate. So preliminary work में पहले ऑडिटर को क्या फोकस करना पड़ेगा कि जो यानी कि बैंकिंग का एनवायरनमेंट कैसा है, बैंकिंग कैसे एनवायरनमेंट से अपने ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करती है। ओके, थर्स द ऑडिटर familiar himself with the provision applicable certain concept, his duties and responsibility in accordance with such laws. Okay, सो प्रिलिमिनरी वर्क में पहले ऑडिटर को मेन क्या फोकस करना पड़ेगा, पहले ऑडिटर को जो कि बैंक ये जिस बैंकिंग का वो कर रहा है, सपोज दे हैव मेंटेनिंग स्टेट बैंक्स ऑडिटिंग, स्टेट बैंकिंग का वो ऑडिटिंग कर रहा है। ओके, तो स्टेट बैंकिंग की जब वो ऑडिटिंग करते हैं
तो उनको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर ऑडिटर के वो बैंकिंग किस तरीके से अपने ट्रांजैक्शन को प्रिपेयर करती है, ऑब्टेन करती है। तो पहले ऑडिटर उनको देखेगा कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत उनकी बैंक ऑपरेट करती है। एंड दे इफ़ जब वो उस बैंकिंग जब वो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है बैंक में, पहले उसको सारा रिव्यू करना पड़ता है बैंकिंग का कि उनका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, कि वो पर और बैंकिंग किस तरीके से वर्क करती है। ओके, पहले ऑडिटर उस चीज़ को फोकस करेगा। फिर जब वो बैंकिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, प्रोसेस को, बैंकिंग ऑपरेट्स को समझ जाएगा, तब पता है कि जब उन कंपनी के बैंकिंग के रूल्स एप्लीकेबल, स्कोप क्या है, तब वो और उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ उसका काम क्या है, उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये सच लॉस के अंतर्गत। तो ये फोकस करने के बाद उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के टूवर्ड्स अपनी बैंकिंग कंपनी की और जो भी बैंक है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग करनी है। ओके, सो ये अंतर्गत बैंकिंग रेगुलेशन ये पूरी प्रोसेस समझने के बाद जब वो अपॉइंटमेंट होगी, तो प्रीलिमिनरी स्टेज में क्या रहता है, ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर वर्क समझेगा कि हाँ उसे क्या क्या काम करना है, किसके लॉस के अंदर बैंकिंग ऑडिट करनी है और क्या फोकस है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉस के अंतर्गत उसके क्या काम है, तो ये फोकस करेगा। फिर किस तरीके से ऑडिटिंग उसे कौन से लॉज में करनी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, ये फोकस करने के बाद ऑडिटिंग करेगा वो अपनी पर्टिकुलर बैंक की। सो इसके लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, सफिशेंट नॉलेज होनी चाहिए बैंकिंग इन्वायरमेंट के अंतर्गत कि कैसे वो बैंक ऑपरेट करती है, और उसको सब यानी कि सिमिलरली द ऑडिटर नीड्स टू एक्वायर गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द सर्विस ऑफर्ड बाय द बैंक। ओके, सो ऑडिटर को क्या होनी चाहिए, उसको पूरा का पूरा समझने के बाद, बैंकिंग के प्रोसेस समझने के बाद उसको सफिशेंट नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ बैंकिंग का प्रोफेशनल वर्क कैसा है, कौन कौन से रिस्क एनालाइज करने हैं उसकी प्रॉपर। फिर ऑडिटर क्या करेगा कि हाँ कि कौन कौन से वर्किंग पेपर्स के, हाँ उनके वर्किंग काम कौन से काम का जो बैंकिंग काम करती है, तो डिपॉजिट्स कर रही है, रिन्यूअल्स कर रहे हैं, काम्स कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत कि वो किस तरीके से काम करते हुए वो और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है बैंक अपने कस्टमर्स को, और कौन कौन से सर्विस वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइज करके उनके पेपर्स, क्योंकि उनके पेपर्स पे मेंशन रहती हैं सारी डिटेल्स, तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद, ताकि ये कौन कौन सी चीज़ें बैंकिंग के अंतर्गत ऑडिटर को सब चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक लोन्स, डिपॉजिट, ट्रेजरी, मनी ट्रांजेक्शन्स, इनकमिंग आउटगोइंग, एटीएम्स, तो इनके डे टू डे प्रोसेस पूरी चीज़ों को अवेयर करने के बाद, इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, इन चीज़ों को ना ऑडिटर को कंटिन्यूस फोकस करना पड़ेगा। टू डू द ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सर्विस कि हाँ ये जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को, तो इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा है, काम कैसा है, इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट नोट्स, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी बैंक साइन करती है अपने यानी कि दूसरी कंपनी ये इनसे अपने यानी कि लोन्स से अपने कस्टमर से, तो ये सारी चीज़ें और ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, प्रॉपर एनालाइज करना, दिस इज़ द प्लानिंग। तो इसके लिए ऑडिटर को फर्स्ट इन चीज़ों को पूरा एनालाइज करने के बाद फिर ऑडिटिंग के लिए अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ फिर उसको बैंक ऑडिट करने के लिए ये सारी चीज़ों को पहले एनालाइज करना पड़ेगा, उसको रिव्यू लेना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से प्रिपेयर करी गई थी, और इन केस ऑफ ब्रांच ऑडिटर है उसको कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फोकस करना है। ब्रांच ऑडिटर जो लास्ट ईयर ब्रांच ऑडिटर चेंज था, तो प्रीवियस ईयर का उसको टेस्ट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, प्रॉपर सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन, उनके कमेंट्स क्या थे, व्यूज़ क्या थे, इंक्वायरी करने के बाद, फॉलो करने के बाद, द ऑडिटर may have prepare for analyze that thing they have analyze in preliminary work. So this is our first stage. So auditor may have review of all branch focus. Okay, if they have prepare a regional office, zonal office, branch office, so they have focus on first द ऑपरेटिंग वर्क ऑफ बैंक। तो इन प्रीमिनल स्टेज में ऑडिटिंग को, ऑडिटर को अपना पूरा का पूरा वर्क जो ऑडिटिंग का है उसके अंतर्गत उसको फोकस
करना पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेज में ऑडिटर विल बी शुड फैमिलराइज विद द बैंक. के ऑडिटर के पहले वो जब बैंक अपॉइंट करती है तो उसके बाद ऑडिटर का पहला वर्क क्या है, प्रिलिमिनरी वर्क में ऑडिटर पूरी प्रोसेस देखेगा कि बैंक किस तरीके से ऑपरेट हो रही है, ट्रांजैक्शंस किस तरीके से हैं, बैंकिंग का एरिया एनालाइज करना, प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, मैनुअल वर्क क्या है. तो इन सारी चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट्स में हो रहे हैं, लोन में, डिपॉजिट्स में और सेविंग्स में, इनमें इन चीज़ों को ऑडिटर को पहले समझेगा. तो प्रिलिमिनरी वर्क में ऑडिटर पहले इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा. ओके, move forward to next slide. In next slide, the second stage will be evaluation of the internal कंट्रोल सिस्टम. इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ऑडिटर का मेन फोकस क्या रहेगा, इट मे नोटेड दैट द ट्रांजेक्शन विच जो यानी कि पूरे के पूरे हो रहे हैं, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, रिस्पेक्टिव है, जो बहुत सारे यानी कि मॉनिटर्ड ट्रांजेक्शन्स हैं, तो वो यानी कि क्या है, जो पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट्स में है वो नोट डाउन हो. सेविंग अकाउंट्स हैं तो सेविंग अकाउंट के अंतर्गत कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, करंट अकाउंट के अंतर्गत कितने ट्रांजेक्शन अंतर्गत आज हमारे यानी कि डे टू डे. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड एंटर्ड इन अ बैंक, यानी कि डे टू डे एंट्री रिकॉर्ड हुए हैं, तो उन ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली इवैल्यूएशन डिज़ाइन करना, प्रॉपरली इवैल्यूएट करना के अंतर्गत कौन सी क्लास में, कौन सी कैटेगरी में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा. ओके, सो इफ दे एक्सरसाइज द इंटरनल कंट्रोल system properly carried out. So the auditor to determine the effectiveness of otherwise the internal control system accordingly inliable to him strengthening his audit procedure. तो internal control system क्यों फ़ायदेमंद रहता है ऑडिटर को, ताकि वो सारे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, बहुत मात्रा में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, ओके, रिकॉर्डेड पर्टिकुलर डेट पे हुए हैं, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के प्रोसेस के टूवर्ड्स ऑडिटर को वो ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली एनालाइज होते हैं. सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिवनेस टू द ऑडिटिंग प्रोसेस और ऑडिट ऑफ अ बैंक. ओके, सो इट में हैव मोर फोकस और ऑडिटर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वेदर दे हैव maintaining and or preparing an audit of banks and focus and follow all the rules and regulation risk. सो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो इन सारे सिस्टम जो भी अंतर्गत हमारे जो बाकी के सिस्टम्स हैं उन चीज़ों को प्रॉपरली कंट्रोल करता है, उनको प्रॉपरली एक प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है ताकि उसके अंतर्गत हम अपने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सके. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एनेबल द बैंक ऑडिटर टू परफॉर्म मोर इफेक्टिव ऑडिट, ताकि वो ऑडिटिंग को इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सके. बिकॉज ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम द बैंक ऑडिट विल बी डन properly because it provides a proper system of control. Okay, so this is a second stage. In first stage we have the auditor should focus on the relating affairs and operating system of banks, and in second stage the auditor should have focus ke what type of system, internal control system he or she applies, whether they have focus and plan on auditing. Okay, so they have more evaluate on which transaction are recorded to which particular account. So internal control system is provide an effectiveness to the bank auditor and to the bank auditor. Okay, so this internal control system is provide a procedure. Okay, now in third stage, the third stage will be preparation of audit program for substitute testing and its execution. Having familiarized him requirement of audit, the auditor should require an audit program for substitute testing should be adequately cover the scope of his work. So preparation of audit work मतलब क्या है, एक डिटेल प्लान है ऑडिट प्रोग्राम. ओके, ऑडिट प्रोग्राम क्या है कि डिटेल प्लान के ऑडिटिंग के अंतर्गत हमें कौन कौन से सिस्टम और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑडिटिंग की प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, कि स्टार्टिंग में हमें कितना रिक्वायरमेंट के हमें कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. तो ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत सारे के सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन मेंशन करी जाती है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायरमेंट है,
वर्किंग के लिए, और क्या ऑडिटर के वीक पॉइंट्स हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के वीक पॉइंट्स है, वीकनेस ऑफ बाय द विच फेस बाय द ऑडिटर। ओके, सो ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारी चीज़ों का हम लोग एनालाइज करेंगे। ओके, द ऑडिट प्रोग्राम फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर। तो ऑडिट प्रोग्राम स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी कि मैंने आप लोगों को रिग्रेस कंट्रोल में हमने लोगों ने डिस्कस किया था और हमने अप्रोचेस में डिस्कस करा, तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसका मेन क्या रिस्ट्रिक्शन रहती है, दे हैव नॉट फोकस ऑन वॉचिंग ऑफ पोस्ट ऑडिट, तो वो देखेगा नहीं ऑडिटिंग। तो यही ब्रांच ऑडिटर का डिफरेंट है, क्योंकि ब्रांच ऑडिटर विल बी हैव मोर टू चेक ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ वेटेज ऑफ वर्क। तो ऑडिटर का यानी कि क्या है, जो ब्रांच ऑडिटर है वो फोकस करेगा ऑपरेशन ऑफ वर्क, सारे जो बैंकिंग के ईच स्टेज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग स्टेज तक वो सारे प्रोसेस को प्रॉपरली इवेलुएट करेगा। ओके, सो इन दिस third point, preparation of audit program which have more focus on weightage of audit work or analyzes the internal control system which have faced by the auditor if some weakness have been faced by the auditor. Okay, now we move forward. The last stage of the bank audit will be preparation and submission of audit report. So okay, पहला स्टेज क्या था, प्रिलिमिनरी वर्क। प्रिलिमिनरी वर्क में ऑडिटर पूरा यानी कि बैंकिंग का ऑपरेशन किस तरीके से बैंक ऑपरेट कर रही है, उनका वर्क प्रोसेस क्या है, उनका प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट, वो फोकस करेगा। सेकेंड स्टेज में इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वो लोग अप्लाई करेंगे, और वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है बैंकिंग को, ये सारा फोकस करेंगे। थर्ड स्टेज में ऑडिट प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि टेस्टिंग प्रोसेस कैसी है, कि ऑडिट प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, ऑडिट कैसे चेक कर रहा है सारी प्रोसेस को, और वीकनेस क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। तो ये सेकेंड वे में हम ये एनालाइज करें। और लास्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिपेयर करेंगे और सबमिट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में। तो जो ब्रांच ऑडिटर रहेगा वो क्या रिपोर्ट करेगा, किसको करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। ओके, सो ब्रांच ऑडिटर हैव रिपोर्ट टू द statutory auditor and who will be considered as per the rules and regulation. तो branch auditor have prepared all the and focus on the terms which have applied by the bank, और उनकी जो यानी कि as for the financial impact the qualification comments of branch account will be clearly brought. तो branch auditor जब audit report करेगा statutory auditors को, so they have more focus। तो branch auditor company कैसे अपॉइंट करती है, तो द पर्सन विल बी क्वालिफाइड और हैव सफिशिएंट नॉलेज और हैव मोर नॉलेज अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। ओके, दे हैव ऑल्सो मेन फोकस अबाउट द रिपोर्टिंग टू द, और अपनी जब वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करता है तो उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट के अंतर्गत वो सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन करेगा कि हाँ डिपार्टमेंटल वर्क कितना हुआ है, हेड वाइज डिपार्टमेंट का कितना काम है, कि एसिड्स का कमेंसिंग कब हुआ था, लिएबिलिटीज़ कितनी, उन सब को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंतर्गत, तो ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारी डिटेल मेंशन रहती है। ओके, ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत टाइटल रहेगा बैंकिंग का, एड्रेस बैंकिंग का कि हाँ बैंकिंग कहाँ स्थित है, ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारे, और उनके स्टेप कंटेंट्स के अंतर्गत सब रहेगा। रिपोर्ट्स किसको करनी है, तो स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट मेंशन करेगा, और उस रिपोर्टिंग के अंदर सारे जो पैटर्न है वो उसको फोकस मेंशन करने हैं, हेड वाइज उसको सारे के सारे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी थी वो मेंशन करना है कि पर्टिकुलर हेड में कौन से डिपार्टमेंट में कौन पर्सन वर्क कर रहा है। दे हैव मोर फोकस ऑन दैट सिचुएशन कि एसेट्स हमने कब कमेंस करे थे, हमने कब फॉर्म करे थे, ये यानी कि जब बैंकिंग था तब कौन कौन से एसेट्स दे हैव परचेज, लिएबिलिटीज़, ओके, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉलो बाय द आइटम्स, ऑल काइंड्स ऑफ आइटम्स, मटेरियलिटी, जो बैंक का मटेरियल है इस साल में कौन सा परचेज किया, दे हैव फोकस टू एनालाइज ऑन दैट। सो थर्स दे हैव मोर फोकस टू एनालाइज इन मेंशन इन ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया। ओके, तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, दे हैव मोर टू द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अंडर इसके अंतर्गत उन्हें एक सर्टिफिकेट मिला।
So this is a long form of audit report. So in a banking sector, they have more focus on LFAR. LFAR का फोकस फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. तो ये क्या है? तो इसी के अंतर्गत बैंकिंग अपनी ऑडिटिंग करती है इन अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ओके, सो इसके अंतर्गत वो अपना पूरा ऑडिट रिपोर्ट का पूरा प्रोसेस लिखेंगे, कंटेंट सारे मेंशन करेंगे, क्वालिफिकेशन जो मेन ऑडिट रिपोर्ट रहती है उसके अंतर्गत सारे स्टेप्स, सरकमटेंसेस, सिचुएशन, केसेस दे हैव फोकस. और उसके साथ साथ मेन रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं जिसको, उसके अंतर्गत हम ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद उसको हम सबमिट करेंगे. उसमें सारे कंटेंट्स सारे मेंशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स हमने जो यानी कि परचेज, सेल्स और सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके वो डॉक्यूमेंट वी हैव फिल अप इन मेन रिपोर्ट. दैट रिपोर्ट वी कॉल अप ऑडिट रिपोर्ट. तो प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में पहले हम ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे, सारे उसमें कंटेंट और स्टेप्स फोकस जो हमारे जो जो कंटेंट्स हैं उसमें वो फोकस करके मेंशन करेंगे. एंड देन वो रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे. ब्रांच ऑडिटर किसको सबमिट करेगा? दे हैव टू सबमिट टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. Okay, so this is our 4 stages of bank audit. First, preliminary work. Second, evaluation of internal control system. Third, preparation of audit program. Fourth, preparation and submission of audit report. So that stage is they have to apply whether they have making and bank audit. Okay, so these have 4 steps which we have focused whether we have doing a bank audit. So from today's session we have discussed only the stages. Okay, and next section we have moved forward to the list of documents which are applied in a banking sector. Okay, so from today's session we have conduct only these points. Now in next session we have discussed the other points of this or concept of this chapter will be the audit of banks, second chapter for specialized student, A group student. Okay, so your session or lecture will be over now. And instruction for all, like this video for your attendance, like, subscribe my channel, and in comment box fill your details. Okay, so thank you to all you students.